Right. Good, Dravya. So now we are going to start again. Today's session, what I've planned is we have covered 6 parts of speech so far now. If you could remember all of them, because there will be one quiz, not one, maybe 2 or 3 quizzes at the end of session today. So I'm remaining with 2 parts of speech right now, and the important ones, the conjunctions, is very important to understand, and also interjection, which is not so useful, but it is good to know and you should be aware of it, right? So I'm going to start with the next part of speech now, which is very important. Before that, I need to share the screen here. So I'll just start the sharing of screen. You guys are able to see the screen? Please type no if anybody is not able to see the screen. Okay, good. You're able to see that? Right. So now, this was the last screen we had in the last session. I had given you one homework on the basis of this screen. You had to make one sentence on each of the prepositions given here, right? I hope you would have done that, right? Now let's see. Going ahead with the next screen here, I'm just forwarding these prepositions. The next part of speech which we have is conjunctions. Under conjunctions, generally what I suggest as a definition is conjunctions को याद करना बहुत ही आसान है. आप इसके लिए एक वर्ड याद कर लो, फेविकॉल. फेविकॉल आपको पता ही है, फेविकॉल हर तरीके का आता है. फेविकॉल से आप कपड़ा जोड़ना चाहो, लकड़ी जोड़ना चाहो, लोहा जोड़ना चाहो, प्लास्टिक जोड़ना चाहो, कुछ भी एक्स वाई जी किसी भी तरीके की चीजें हो. सीमेंट के लिए भी फेविकॉल आता है, पानी के अंदर वाला भी, पानी के बाहर वाला भी. हजारों तरीके की चीजें होती है दुनिया में, हजारों तरीके की चीजों को जोड़ने के लिए फेविकॉल होता है. वैसे ही कंजंक्शंस होते हैं. इंग्लिश में हजारों तरीके की चीजें हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब तो है ही सही. बहुत सारे नाम, बहुत सारे फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, बहुत सारी चीजें होती है. उन सबको जोड़ने के लिए जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शंस कहलाते हैं. सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर फेविकॉल इन प्लेस ऑफ कंजंक्शंस. जैसे फेविकॉल 3-4 तरीके का मेन आता है जो हमारे काम में आता है, वैसे ही हम कंजंक्शंस को 3-4 तरीके से डिवाइड करेंगे. Coordinating conjunctions, if you see the first on the screen here, it is very easy, and there is one shortcut given in this bar. If you here see fanboys, FANBOYS, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, and S for so. So these are the easier conjunctions which you can remember, and they are coordinating because when they join two phrases or two clauses or two sentences, again, if you remember from verbs section, every sentence must have a one verb, right? और जब verb होती है वो action होती है, right? अब अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ रही हैं, तो दोनों में से हो सकता है एक मेन वर्ब हो और एक डिपेंडेंट वर्ब हो. अगर ऐसा है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस काम नहीं आएगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कब काम आएगा? जब दो वर्ब, सेंटेंस में आने वाली दो वर्ब आपस में दोनों इंडिपेंडेंट हो. वो सिर्फ साथ में आ सकती हो लेकिन उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन ज्यादा नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. ये एक बहुत फेमस पोएम की लाइन है. जैक भी हिल पे ऊपर गया, जिल भी हिल के ऊपर गई. तो जैक और जिल दोनों गए, दो फ्रेजेस को जोड़ा है. जैक वेंट अप द हिल, जिल वेंट अप द हिल. उसको जोड़ा है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. तो इजीली जुड़ गया. जैसे द वाटर वॉज वार्म बट आई डिडंट गो स्विमिंग. यानी पूल की बात हो रही है कि पानी गर्म था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मैं स्विमिंग करने नहीं गया. दो अलग अलग वर्ब हैं, एक वाटर का वार्म होना, एक मेरा स्विमिंग पे नहीं जाना. बट दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है किसी की भी वजह से. ऐसा नहीं कि वो वार्म था इसलिए मैं गर्म नहीं नहाने गया, या वो वार्म नहीं होता तो मैं जाता. ऐसा नहीं है, उससे डिपेंडेंसी नहीं है. दो वर्ब साथ में आई हैं, सिर्फ उनको जोड़ा है. So these fan voice conjunctions are known as coordinating conjunctions because they join two different verbs which are independent verbs. They are just coming together, but they are not related to each other. ये याद रखना है आपको. Is that clear, everyone? Type your responses if it is clear.
I don't see anyone's response here. One, two, three, 4, 5, 6. Okay, good, good, good. Now let's see. Coordinating conjunctions, very easy to remember. As I said, two verbs coming together but not related. They are just joined. So that's coordinating conjunctions where we use. And इसका formula सीधा सीधा fan voice. ये याद कर लोगे तो coordinating conjunctions याद हो जाएंगे. नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तब यूज होंगे जब दो वर्ब साथ में आएंगी लेकिन एक वर्ब मेन होगी और दूसरी वर्ब उससे कनेक्टेड होगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट स्विमिंग ऑल्दो इट वॉज कोल्ड. यानी कि पानी ठंडा था फिर भी मैं स्विमिंग पे गया. जनरली ऐसा माना जाएगा कि ठंडे पानी में कोई स्विमिंग करने नहीं जाता है. एक जनरल नोटिफिकेशन होता है उसके हिसाब से माना जा रहा है ये कि जनरली कोई नहीं जाता है स्विमिंग करने ठंडे पानी में. बट पानी ठंडा था फिर भी मैं गया, इसीलिए ये जो कंजंक्शन हमने यूज किया है ऐसा है सबऑर्डिनेटिंग. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इफ यू रिमेंबर, मैनेजर हैज मेनी सबऑर्डिनेट्स. बीए में आपने सुना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक मैनेजर होता है, उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज होगा? जहाँ पे एक मेन वर्ब होगी यानी मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट वर्ब होगी यानी इंडिपेंडेंट वर्ब होगी. सो मेरा स्विमिंग पे जाना डिपेंडेंट था किस पे? कोल्ड होने पे. तो कोल्ड था फिर भी मैं स्विमिंग पे गया. अंडरस्टैंड? सिंस, बिकॉज, इफ, आफ्टर, until, although, before, as though, ये सब जो कंजंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में यूज होते हैं. You guys understand this? If you do not understand, please type in your responses. Yes or no, type your responses. If anybody is not able to understand, I will repeat that. बट सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है इसमें. मैनेजर और सबॉर्डिनेट याद कर लो. मैनेजर को अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है तो मेन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और सबॉर्डिनेट उसके डिसीजन के आधार पर चलता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है. तो जो दो बार पाएंगी, एक मेन होगी एक डिपेंडेंट होगी, तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे. अंडरस्टूड? This is the box given where the most commonly used subordinating conjunctions are given in this box. You can see here. All right, so I'll go forward to the next screen. After subordinating, we have the third type and the final type of conjunctions, which is correlative conjunctions. Correlation आपने statistics में word सुना होगा या maths में सुना होगा. Correlation दो इन चीजों के बीच होता है जो बहुत करीब से related होती हैं, बहुत closely related होती हैं. तो correlation means closely related. जैसे आप इस बॉक्स में देखो, जो भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं conjunctions यहाँ पे, both and, जैसे both Ramesh and Suresh went for hiking. Either you or I should go. Neither you nor her should go. Since it was very cold, therefore we did not go out. Since it is coronavirus outside, therefore we are inside. If corona is not there, then we will go there. Not only but also, just not only corona has locked us down, but also it has stopped all the working pattern, right? So these are the conjunctions given where you have two different conjunctions coming together as a phrase, और उन दोनों के बीच में दो phrases या clauses दिए होते हैं. तो दो conjunction जुड़ के साथ में एक correlative conjunction बनाते हैं. यहाँ पे दो conjunctions होने जरूरी है. Remember that. Both and, either or, neither nor, since, therefore, ये सारे correlative conjunctions कहलाते हैं. So the three types of conjunctions we have gone through. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिसमें दोनों मेन वर्ब होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. सबऑर्डिनेटिंग जिसमें एक मेन एक डिपेंडेंट वर्ब होती है. और कोरिलेटिव जिसमें कंजंक्शंस खुद दो होते हैं, दो अलग अलग जगह पे आते हैं. इज दैट क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कंजंक्शन कोई से भी हो, आपको इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है मैंने अभी. इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स करते हो, सेंटेंस बनाते हो, या आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हो, तब ये कंजंक्शंस बहुत काम आते हैं. इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी. कंजंक्शंस टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा आपको. आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ होमवर्क आफ्टर दिस सेशन इज ओवर. आपका मेन होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ. जितने भी ये बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, एक फैन बॉयज का बॉक्स ये वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, और एक ये
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सिंस बिकॉज वाला, और एक को रिलेटिव कंजंक्शन में ये बॉक्स वाला। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इन तीनों के हर एक कंजंक्शन पे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस विद ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जो बॉक्स में कंजंक्शन बने हुए हैं उन पे आपको हर एक कंजंक्शन पे एक एक सेंटेंस बनाना है। राइट, द नेक्स्ट वन, ये वाला तो मैंने खुद ही आपको अभी करके दिखाया था, इस पे मैंने सेंटेंसेस बनाए थे। इफ यू गो थ्रू माय रिकॉर्डिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। सो उसी तरीके से आपको होमवर्क करना है, हर एक कंजंक्शन पे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। ट्राई एंड बी क्रिएटिव, जितने आप अच्छे तरीके से बनाना सीखोगे सेंटेंसेस, उतनी ही इंग्लिश आपकी पावरफुल हो जाएगी। राइट, द होमवर्क इज क्लियर। आई एम गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड हियर। Interjection, the last parts of speech, the last part of speech we have is interjection. Interjection को मैं एक फनी तरीके से याद कराता हूँ लोगों को। जस्ट याद करो इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? जैसे डॉक्टर आपको इंजेक्शन मारता है तो आपके मुंह से क्या आवाज निकलती है? ऊ, आ, आउच, राइट? So what are those sounds or voices which you crack when you have injection? Those voices or sounds are called interjection. समझ में आया? इजी तरीके से याद करो, जब इंजेक्शन लगता है तो इंटरजेक्शन निकलता है। इंटरजेक्शन इज नॉट एक्चुअली अ ग्रामेटिकल कनेक्शन हियर, हैज नो ग्रामेटिकल कनेक्शन। इसका कोई सेंटेंस नहीं होता है। ये सेंटेंस के बीच में फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स या साउंड्स होते हैं। जरूरी नहीं है इंग्लिश वर्ड हो, ये साउंड भी हो सकता है। जैसे आपने एक फिगर ऑफ स्पीच सुना होगा, ओनोमोटोपिया, जिसमें अलग अलग जानवरों की या नॉन लिविंग थिंग्स की आवाजों को भी बताया जाता है इंग्लिश में लिख के, राइट? वो सारे भी इंटरजेक्शन कहलाते हैं, बिकॉज दीज express the feeling of the speaker. Interjections are just short exclamations like hello, bravo, alas, ah, ooh, ah, ouch, yes, no, please, thank you. All these are called interjections. ये ग्रामेटिकली कनेक्शन नहीं होता है इनका सेंटेंस के साथ में। इसका इसका सिर्फ एक और एक ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ द स्पीकर। इनके कहने के तरीके से हमें पता पड़ जाता है स्पीकर की कंडीशन क्या है, वो हंस रहा है, रो रहा है, खुश है, दुखी है, गुस्सा कर रहा है या मना रहा है, रूठा हुआ है, whatever, right? So now go ahead with the next slide. Interjection, if you see the slide here, hey, look at that. Hey मतलब क्या है? Calling attention. कोई सामने खड़ा उसको बुला रहे हो, आप उसके attention बुला रहे हो, attention को कॉल कर रहे हो, right? Hi, what's new? Hi means greeting, एक तरीके से नमस्ते जैसे बोलते हैं हम। या well, what did he say? Like just एक रिमार्क पेश कर रहे हैं कि मतलब just introducing a remark like what did he say? Well, उसने क्या कहा? तो ठीक है, he like well means ठीक है, like that. So these are different types of words which we use in general language to express the speaker's feeling, right? So ये सारे interjections होते हैं simple. Let's see if we have any more slide after this. No. Okay, I'll just quickly go back to the previous slides here. I'm giving you 2 minutes quick review of this parts of speech here so that we can go ahead with the quiz forward to this. If you remember nouns, we had, this is the parts of speech, all 8 parts: noun, pronoun, verb, and adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Noun, we had person, place, animal, things. The names of these things are called nouns. Remember that? And have different types: common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, countable, uncountable noun. I'm not going in detail. Going forward to the pronouns here. Pronoun are the simple words used in place of noun. For example, Tim is absent because he is ill. He एक subjective pronoun होता है, subjective, objective और possessive pronoun होते हैं, जो मैंने टेबल में आपको दिखाया था। ये आपको subjective, possessive and objective pronouns, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल सिंगुलर भी याद रखना जरूरी होता है। इसमें एक लुक देख लो इस स्क्रीन पे, आपको याद रहेगा। इससे ग्रामर में बहुत गलतियां सुधर जाती हैं अगर आप याद रखोगे इसको तो, राइट? Going ahead to the next slide, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका चाहो तो। Going to the next slide. Let's have some fun. Not now here. We will have some quiz afterwards. Adjective.
एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड्स लाइक जो एडवर्टाइज करते हैं किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं। उनको कभी डिटरमाइनर्स बोलते हैं, हम क्वालिफायर्स बोलते हैं। बट व्हाट द actually do is they just give some feature of the noun or pronoun। जैसे a big car तो उसकी साइज बता रहा है, I like Chinese food तो फूड का ओरिजिन बता रहा है, it is a tough decision तो डिसीजन की क्वालिटी बता रहा है। तो उनकी कोई क्वालिटी, उनका कोई फीचर, उनका कोई साइज, शेप, कलर, कुछ ना कुछ बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव उनको कहते हैं। एडजेक्टिव के बाद इफ यू सी, एडजेक्टिव के बाद में हमारे पास वर्ब था। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कवर किया था। वर्ब का अलग से मैंने पीपीटी भी दिखाया था आपको। उसमें हमने बहुत सारे तरीके के देखे जिसमें एक्शन वर्ब्स, देन नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, इसके अलावा बी वर्ब होती हैं, डू वर्ब और हैव वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे अलग अलग तरीके के पॉसिबिलिटी, इंटेंशन, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटीज को शो करते हैं। सो ये वर्ब्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा इसके अंदर में। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब इफ यू रिमेंबर, जो ईडी में फिनिश होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो रेगुलर कहलाती हैं। जो ईडी में नहीं होती वो इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। देन एडवर्ब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की एडवर्टाइज करता है, वैसे ही एडवर्ब किसकी एडवर्टाइज करेगा? वर्ब की एडवर्टाइज करेगा। along with the verb it can also advertise another adjective in the sentence or another adverb in the sentence। you see the examples, the man ran quickly। man कैसे भागा? quickly भागा। तो quickly क्या है? adverb है। Tara is really beautiful। beautiful is adjective, but एक्चुअली ब्यूटीफुल है या रियली ब्यूटीफुल है? तो रियली या एक्चुअली क्या है? वो एडवर्ब है। द सेल फोन वर्क्स वेरी वेल। यहाँ पे वेल तो एडवर्ब है ही सही, वेरी भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या है? या तो वर्ब के लिए या एडजेक्टिव के लिए या एडवर्ब के लिए, तीनों में से किसी के लिए भी उसकी फीचर बता सकता है। और वर्ब के लिए जब बताएगा तो उसके तीन फीचर मेनली बताता है, प्लेस, टाइम एंड मैनर। उसको आप पीटीएम से याद कर लो। PTM you remember, place, time and manner। ओके, एडवर्ब से आगे जाते हैं तो हमने लास्ट देखा था प्रेपोजिशंस, जिस पे आपको होमवर्क भी दिया था। प्रेपोजिशंस की ये वाली टेबल आपको याद रखनी है जिसमें बहुत कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं। ये आप याद रखोगे, इनके ऊपर अगर आपको सेंटेंस बनाने आते हैं तो आधे से ज्यादा प्रेपोजिशन का काम इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कंजंक्शंस, जो अभी हमने कवर किया है। तीन टाइप के कंजंक्शंस देखे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग मींस जहां दोनों वर्ब्स मेन होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सबऑर्डिनेटिंग मींस जहां पे एक मेन होती है, एक इंडिपेंडेंट नहीं होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। और कोरिलेटिव मतलब जहां पे कंजंक्शंस खुद दो होते हैं। And interjections, ooh, ah, ouch, you remember that? Or hey, hi, well, thank you, yes, no, sorry. All these are called interjections. Right, guys? So I think you are ready for the quiz now. I'm going to start sharing the screen again here for the quiz. Just give me 1 minute here. Let me see where we have that. Okay, I'm going to share the screen now here. Let's see. You guys are able to see the screen now? This is the quiz. Okay, first question. You need to raise your hand. Guys, don't need to answer. You need to raise your hand and then I'll say the name of the person who can answer. I bought a beautiful shirt at the market. जो underline word है, beautiful, वो क्या है? Yesha Patel has raised the hand. Let's see who else. Two people. Who are they? Three. Yes. Okay. Urja, if you could answer that, right? Type in. Pooja has typed adverb. I'm sorry, Pooja, that's a wrong answer. Beautiful एक quality बता रहा है, लेकिन किसकी quality बता रहा है आपको वो देखना है। Yesha, if you also answered adverb, that's wrong. Vidhi, can you try that?
I'm sorry, Vidhi is not there. Vidhi is, but okay. Shubh is there. That's Shubh, not Vidhi. Yeah. All right. Sanskar, can you type in the answer? Correct answer here. Diya says adjective. That's correct, Diya, but you need not raise your hand. Adjective, Dravya, correct. All right. Adjective is the answer here because beautiful was giving feature of the shirt and shirt is a noun. तो noun का feature बताने वाले word क्या होते हैं? Adjective होते हैं. Next question you see on the screen. What did he ask you to say? He underline किया हुआ वो क्या है? Noun, adjective, pronoun या adverb? Let's see who has raised hand here. Oh, Dravya, do not answer directly. Pronoun, that is correct. You need to raise your hand, guys. Do not answer directly. Pronoun is the correct answer. All right, next. I left my bag under the desk. Under इसमें क्या है? Preposition, noun, adjective, adverb. Please raise your hands. Please do not type in the answer. Raise your hands. Okay, Kathan, if you could answer that. Kathan, please type in the answer. Preposition, that is correct. If we finish our work quickly, now we can go to have a coffee. Quickly यहाँ पे underline किया हुआ है. ये क्या है? Noun, verb, adjective, adverb. Please raise your hands. All right. Suryajit, you got the chance here. Please type in your answer. Suryajit, can you type the answer, please? Adverb. That's correct. Quickly, वर्क को फिनिश करना है. वर्क क्या है? फिनिश करना है. तो फिनिश करना है क्विकली. फिनिश एक वर्ब है. क्विकली मीन्स कैसे फिनिश करना है? जल्दी फिनिश करना है. एडवर्ब इज द करेक्ट आंसर. On Sundays, I work from 10 till 4. Noun, verb, adjective, adverb. Work इसमें अंडरलाइन किया हुआ है. Please raise your hands again. Here, let's give chance to new person. Let's see who is there. Sanskar, please type in. Adjective. Work is not adjective, Sanskar. Sorry. I work from 10 till 4. वो एक सेंटेंस है अपने आप में. तो वर्क उसमें क्या है? सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? Vedanshi, can you type in the answer? Shubham has already typed verb. Yes. And Yesha is also correct. Manav is good. Good, Manav, you're joining in. Verb is the correct answer. I work from 10 till 4. All right, next question. I want to go to a college in Australia. College यहाँ पे underline किया हुआ है. College क्या है? Verb, adverb, adjective, noun. Please tell me. Diya, if you could type in the answer. College क्या है यहाँ पे? दिया says noun. Very good. Place का नाम का जगह है. जगह की नाम है ये place तो noun है correct. What do we call someone who prefers to stay up late night? I'm sure I have met your boyfriend before. Met यहाँ पे underline किया हुआ है. ये met क्या है? Verb है, noun है, adjective है, adverb है. Please raise your hand. Sumit, if you could type in your answer. Met यहाँ पे क्या है? Sumit. Verb. That's correct. I have met यहाँ पे मिला हूँ, मिल चुका हूँ यानी verb है वो. Andy knocked on the window, but nobody came to see. But यहाँ पे underline क्या हुआ है? ये क्या है? Preposition, conjunction, noun, adverb, adjective क्या है ये? Raise your hands.
Let's see. Gopal, could you type in the answer? Conjunction, that's correct. Gopal has typed conjunction, that is correct. Conjunction. Well, I don't think I will be here to answer the phone. Well underline किया हुआ है यहाँ पे, ये noun है, pronoun है, interjection है, adverb है. Raise your hand, guys. Noun, pronoun, interjection, adverb. Sakshi has joined. So Sakshi, please, if you could answer that. Sakshi, type in your answer, please. Yesha has already typed in interjection. That is correct. Last question here. What do we call someone who prefers to stay up late night after lunch? Let's go out to watch a movie. After lunch, या after underline क्या हुआ है? ये after क्या है? Preposition, noun, adjective, interjection. Who can answer this? If you're confident, please raise your hand. Okay, let's see. Devansh, if you could type in your answer. Devansh, what is after here? मानव, नो प्रपोजिशन नहीं है ये. सुमित, प्रपोजिशन नहीं है ये. एडजेक्टिव ट्राई करो. The trick here is answer is not given in the options. After एक preposition भी होता है, but after एक conjunction भी होता है. Guys remember, ये conjunction है. हाँ, it is conjunction. After having lunch या after finishing lunch, वो वैसा होना चाहिए पूरा sentence. ये after में finishing खत्म कर दिया, वो conjunction की तरीके से आया है. It can also be called preposition sometimes. Some grammar books will say preposition, but after here is generally coming for the verb to join. Let's go out is one verb. After finishing lunch is another verb. तो दो verb को जोड़ के आया है, इसलिए after conjunction है. Right? Next, let's see. We have to stop screen share here. I'll start the next quiz here. We are running short of time, so I'll just quickly start another quiz here for you. Okay, let's see. Where are we now on this? Yeah. Okay, guys, can you see the screen here? Yeah. All right. First question. I bought a beautiful dress at the mall. तो beautiful यहाँ पे क्या है? Preposition, adjective, noun. Please raise your hands. Shubham, please type in your answer. I bought a beautiful dress at the mall. तो beautiful क्या है यहाँ पे? Yesha says adjective. That is correct, Yesha. Shubham as adjective is correct. Okay, next. What did she ask you to do? What did she ask you to do? Conjunction, preposition, pronoun. She क्या है यहाँ पे? Pronoun. Sanskar, you do not type in the answer. That's correct. Okay. Pronoun is correct. She किसी वर्ब नाउन की जगह पे आया इसलिए pronoun है. I left my shoes under the kitchen table. Under यहाँ पे क्या है? Adjective है, preposition है, pronoun है. Please raise your hands. Shubham, raising hands is the criteria. Preposition, yes, it is correct. Under the kitchen table. No, Yasha, previous answer. What did she ask you to do? She वहां पे pronoun है. He, she, it, they वो सब pronoun होते हैं. I left my shoes under the kitchen table. Under यहाँ पे preposition है. Third question में. Fourth question we have is, if we finish our work quickly, we can go to the movies. तो quickly यहाँ पे क्या है? Adverb की conjunction. ये वाला question हमारा आया था.
सेम क्वेश्चंस हैं जो हमारे पहले किए हुए थे, आपको याद हो तो। एडवर्ब, दैट्स करेक्ट, इट्स एन एडवर्ब। कैसे फिनिश करना है? क्विकली फिनिश करना है। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। वर्क यहाँ पे क्या है? वर्ब, preposition, एडवर्ब। संस्कार, इट इज वर्ब, करेक्ट। आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। तो यूनिवर्सिटी क्या है? एडजेक्टिव, pronoun, preposition और noun, क्या है ये? Noun, that is correct. I'm sure I have met your girlfriend here before. तो verb वो पहले से ही हमने कर लिया है। Verb, well, I don't think we will be home before 6. Interjection, ये वाले सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। बट यहाँ पे कंजंक्शन है, हम पहले कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट पासिंग थ्रू दैट क्वेश्चन। लेट्स सी, वी हैव दूसरा स्क्रीन हियर, दूसरा क्विज भी था मेरे पास। डू वी हैव दैट हियर इन? या, दिस इज द क्विज हियर। शी इज अ गुड प्लेयर, एडवर्ब की एडजेक्टिव, गुड क्या है? रेज योर हैंड guys, quickly, we are running out of the time. First question, she is a good player, एडवर्ब की एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मानव से, दैट इज करेक्ट। प्लेयर यहाँ पे नाउन है, तो उसके लिए गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है। अ लेजरली लंच, लेजरली क्या होता है? ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? रेज योर हैंड्स गाइस। यशा पटेल सेज एडवर्ब। एल वाई आने वाले जनरली एडवर्ब होते हैं सूर्यजीत। यस, इट इज नॉट एडवर्ब। एलवर्ब, एल वाई वाले जनरली एडवर्ब होते हैं बट हमेशा नहीं होते। जैसे फ्रेंडली वो एडजेक्टिव होता है, वैसे यहाँ पे लेजरली एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। लंच एक नाउन है, ये लंच की क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ। याद रखना है तुम्हें वो किसकी क्वालिटी बता रहा है। अगर वो नाउन या प्रोनाउन की बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। अगर वो वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा। सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, इसलिए ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, आई हैव जस्ट डन इट। तो जस्ट यहाँ पे कैपिटल में दिया हुआ, ये जस्ट क्या है? प्रेपोजिशन है कि एडवर्ब है? आई हैव जस्ट डन इट। ओके, who's gonna type that answer? Preposition की adverb? Adverb, just, that is correct, adverb, because अभी अभी किया है। किया है एक verb है, कब किया है? अभी अभी किया है। just done it तो adverb है। Place, time and manner, remember that. Okay, and the next question we have, he finished the show very well। finish किया show very well, तो well क्या है यहाँ पे? adverb की adjective? Fourth question now, he finished the show very well, adverb। साक्षी से हूं पण, एडवर्ब, दैट इज करेक्ट, एडवर्ब। फिनिश किया है, अच्छे से फिनिश किया है, तो वेल क्या है? एडवर्ब है, वेरी गुड। इट टुक हाफ एन आवर टू गेट देयर, हाफ एन आवर, तो एन, ये क्या है? एन लिखा हुआ। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है पर आपको आना चाहिए इजीली। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल। अभी आर्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है? ए, एन, द, तीन तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। उसमें ए एन एक अलग कैटेगरी होती है, द एक अलग कैटेगरी होती है। तो एन उसमें से क्या है? डेफिनेट वाला कि इनडेफिनेट वाला? Dravya says definite. That's wrong answer. Yesha, that's wrong answer. N is indefinite. द तभी आता है जब चीजें स्पेसिफिक हो, जब चीजें डेफिनेट हो। तो द नहीं आता है, तो द यानी कि डेफिनेट के लिए होता है। ए और एन इनडेफिनेट के लिए होते हैं। अंडरस्टूड? इट इज इन द बॉक्स, तो इन यहाँ पे कैपिटल में किया हुआ है। इन क्या है? प्रोनाउन की प्रेपोजिशन? इट इज प्रेपोजिशन, यस करेक्ट। दे लेफ्ट अर्ली, दे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। व्हाट इज दे? नाउन की प्रोनाउन? Easy, quickly, fast, guys. Pronoun. Very good. I sometimes go there. Sometimes क्या है यहाँ पे? Adjective है कि adverb है?
मैं कभी कभी जाता हूँ वहां पे, समटाइम्स, कभी कभी, क्या बता रहा है वो, एडवर्ब है, यस। वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है या टाइम बता रहा है जाने का, वर्ब का। तो वर्ब का फ्रीक्वेंसी बताना यानी कि वो एडवर्ब हुआ। इट्स अ लवली फिल्म, फिल्म वहां पे एक नाउन है, तो लवली क्या होगा?